वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ टीचर कूल। यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जाम नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उनके सॉल्यूशंस, उनकी अप्रोच कैसे की जाएगी टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बहुत कम पढ़ने से, राइट। सो द वन ऑफ द मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको कोई भी चलते चलते बता सकता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर के पेपर के अंदर कौन सा आएगा, विच इज एलएस कपलिंग। सो द प्रेजेंट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन spin orbit coupling for an electron and also for a system of two electrons, right? हमें LS को explain करना है for a system of two electrons. तो we'll start with orbital motion, right? I'll say LS coupling is majorly observed in lighter atoms. This is one major point, and post that we'll start with the answer or explanation. We'll say कि सबसे पहले मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेट अस से उनकी इंडिविजुअल ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल मोमेंट है या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इट इज़ डिनोटेड बाय L1 and L2. They are independent of each other, right? This is L1, this is L2. They are independent of each other, but when they are placed together, they are strongly coupled. Keyword is strongly coupled to form L vector, which is the resultant of these two vectors, and such that they both are precessing about this resultant L vector, such that L vector की जो values रहेंगी, it will be the vector sum of L1 and L2. That means it will vary from L1 plus L2 to L1 minus L2. Right? So if I get the value of L as 0, 1, 2, it will denote as sp, d and f orbitals. Right? Second part is spin angular momentum. Right? Just like the orbital momentum, यहाँ पे हमारा spin का भी हम बोलेंगे, उनके individual spin vectors are s1 and s2, and they both are strongly coupled to form S vector, which is the resultant vector of S1 and S2, about which both of them are precessing, right? Such that similar cases S का value कहाँ से कहाँ तक रहेगा, it will vary from S1 plus S2 to S1 minus S2. Now S का value is only half, so we'll say S1 plus S2 will give me 1 and S1 minus S2 will give me 0. I'll get only two values, 0 and 1, which are denoted as S equal to 0 means the singlet state, while S equals to 1 means triplet state. As this is given by the multiplicity किसी की भी अगर निकालनी होती है तो we put it in the formula of 2s plus 1, which obviously S का value 1 half ही रहेगा, तो इसके अंदर जब हम put करेंगे तो I'll get multiplicity 0 को अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे, now we are not putting S equals to half, we are putting the resultant vector. So if I put S equals to 0 case, the multiplicity I'll get is 2 into 0 plus 1, which gives 1. So I'll say it is a singlet state. Whereas if I put S equals to 1, I'll get 2 into 1 plus 1, which is 3. Hence I'll say it is a triplet state, right? L1 and L2, two individual separate vectors, independent vectors, they are strongly coupled to form L vector. Similarly, S1 and S2 are two independent and separate vectors, strongly coupled to form S vector. Now, just like these two, I'll say इसका जो resultant है S vector and इसका जो resultant है L vector. Now, these two resultant vectors L and S are weakly coupled. At this point I'll say they are weakly coupled to form J vector, which is the resultant vector, इसका और इसका resultant vector, which will process about L और S जो resultant है, they'll process about this resultant vector such that इसका magnitude क्या रहेगा, under the root J into J plus 1 H cross, and इसका value क्या रहेगा, L minus S से L plus S, because it is a vector sum, right? S का यहाँ पे हम प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हैं. सो वी से दिस LS कपलिंग, ये जो LS की कपलिंग हुई, L और S के रिजल्टेंट्स की जो कपलिंग हुई, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच मल्टीपल टर्म. कोई भी मल्टीपल टर्म मेरे पास आती है, आई विल से इट इज अ कलेक्शन ऑफ फाइन स्ट्रक्चर लेवल्स ड्यू टू S
एंड ईच कैरेक्टराइज बाय डेफिनेट J वैल्यू, दैट मीन्स उसके अंदर एक डेफिनेट L वैल्यू रहेगी एंड एक डेफिनेट S वेक्टर रहेगा एंड I'll say एज अ रिजल्टेंट उसका एक डेफिनेट J वैल्यू रहेगी. सो दिस इज वन मेजर लाइन है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है विच इज staying in or which is lying in the p orbit, so I'll say उस केस के अंदर L का वैल्यू will remain as 1 because SPDF करते हैं, right? एक इलेक्ट्रॉन D में है तो L will be 2, right? इन दोनों से मेरा L रिजल्टेंट वेक्टर क्या निकलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर इज L1 प्लस L2 से लेकर अप टू L1 माइनस L2. तो फर्स्ट इज addition 1 plus 2 is 3 and second one is 1 minus 2 1, so I'll say 1 2 3 will be my resultant orbital momentum. S का वैल्यू प्लस माइनस हाफ ही रहता है तो यहाँ से जो वैल्यू आएंगी it will only be 0 and 1. अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं? रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. रिजल्टेंट के लिए सबसे पहले आई विल पिक द S इक्वल्स टू 0 विच इज द सिंगलेट स्टेट. सिंगलेट स्टेट के अंदर मेरे पास अब 3 केसेस हैं. L इक्वल्स टू 1, L इक्वल्स टू 2, L इक्वल्स टू 3, राइट? 3 केसेस के लिए J का वैल्यू क्या होगा? L माइनस S से L प्लस S 0 है तो L में ऐड करो चाहे ना करो J का सिर्फ एक ही स्टेट मिलेगा 1 2 3 विच इज सिमिलर टू L. L एज इट इज आ जाएगा. S का कोई रोल नहीं है एडिशन सब्ट्रैक्शन में. तो मेरे पास करस्पॉन्डिंग टू L P ऑर्बिटल सिंगलेट स्टेट है तो यहाँ पर 1 एंड J का रिजल्टेंट इज 1 1d2 1f3. I'll get 3 states और इसके करस्पॉन्डिंगली ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा. ऑब्वियसली इसका जो डायमेंशन है इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट? नेक्स्ट इज माई ट्रिपलेट स्टेट. ट्रिपलेट स्टेट के अंदर S इक्वल्स टू 1 है. L का वैल्यू मेरे पास 1 2 3 रहेगा तो J का इस केस के अंदर क्या आएगा? 1 माइनस 1 0 से लेके 1 प्लस 1 2 तक. सो आई विल गेट 0 1 एंड 2. सिमिलरली यहाँ पे आई विल गेट 1 2 3 एंड यहाँ पे आई विल गेट 2 3 एंड 4, राइट? तो इस केस के अंदर रिजल्टेंट क्या आएगा? 3p0 3p1 3p2. ये L वेक्टर ये S वेक्टर आई विल गेट 0 1 2 0 1 एंड 2. इनकी कपलिंग होगी. इस केस के अंदर 3d 1 2 3 तो यहाँ से L S एंड ये 1 2 एंड 3, राइट? यहाँ से 2 3 4 L S 2 3 4. I'll get the resultant LS coupling. Clear है यहाँ तक? All okay? Let's move on to explain JJ coupling with vector diagram. LS coupling सबको समझ में आया? L का हमने 2 इंडिविजुअल लिए, S के 2 इंडिविजुअल लिए, उन्होंने स्ट्रांगली कपल करके 2 रिजल्टेंट दिए जिसको हमने वीकली कपल करके एक रिजल्टेंट बनाया एंड उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया. सो दिस इज माई LS coupling. Very important question. Half part is over. Second part is explain JJ coupling with vector diagram. So let's move on to that. So the second part of the question says explain JJ coupling with vector diagram. So we'll start with JJ coupling. Now JJ coupling is observed in heavier atoms because जो lighter atoms होते हैं उसके अंदर LS coupling जो इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रॉन की होती है it is more dominant than compared to कपलिंग ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन सेपरेटली. उन दोनों में वीक कपल रहेगा, अपने खुद के में स्ट्रॉन्ग रहेगा. वेयर एज जो हेवियर एटम्स होते हैं उसके अंदर L और S का अलग अलग एटम्स का जो J बनता है उनका कपलिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू उनका इंडिविजुअल का, राइट? सो वी से कि this coupling is applicable in higher atoms where LS coupling predominates than Li का coupling and Si का. जैसे S1 और S2 पहले कपल करके S बना रहे थे, L1 L2 करके L बना रहे थे बिकॉज लाइटर एटम्स के अंदर वो डोमिनेट करते हैं. फिर हम वीक जो रिजल्टेंट बनते हैं उनका वीक होता है. यहाँ पे क्या होगा? LS का L और S का कपलिंग होगी, LS की कपलिंग होगी, फिर J1 J2 जो मिलेंगे उनका कपलिंग होकर एक रिजल्टेंट मिलेगा. सो वी से इन वेक्टर एटम मॉडल फॉर JJ कपलिंग नाउ L and S आर स्ट्रांगली coupled to give resultants JI
Ji में J1 और J2 फिर क्या करेंगे, ऑफ टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स आर देन वीकली कपल्ड टू गिव माई रिजल्टेंट J वेक्टर, राइट, सच दैट J की वैल्यू कहाँ से आएगी, J1 एंड J2 का वेक्टर सम विच इज J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं p ऑर्बिटल के अंदर, तो उसका L1 क्या होगा 1, p है, s का वैल्यू हाफ ही रहता है, तो मेरा J का वैल्यू क्या आएगा L प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ विल बी 3/2, 1 माइनस हाफ विल बी 1/2, बीच में कोई नहीं आ रहा है। सिमिलरली एक d ऑर्बिटल ले लेते हैं, L का वैल्यू 2 आएगा, s विल बी हाफ, तो आई विल गेट 3/2 टू 5/2। हमने ये पहले ही बोला था कि J विल ऑलवेज कम आउट टू बी इन टर्म्स ऑफ हाफ इंटीग्रल, क्योंकि उसके अंदर हम हाफ को ऐड करते हैं, राइट। तो आई विल से कि मेरे पास एक S वेक्टर ये वाला था, एक L वेक्टर ये वाला था, S ऐसे था, L ऐसे था, इन दोनों ने रिजल्टेंट बनाया, दिस इज J2। सिमिलरली S1 यहाँ पे था, L1 यहाँ पे था, इन्होंने बनाया J1। नाउ दिस J1 एंड दिस J2 विल कपल वीकली टू फॉर्म दिस J। ये स्ट्रांगली कपल्ड, ये स्ट्रांगली कपल्ड, दिस विल बी माई वीकली कपल्ड, राइट। तो J1 क्या है, अगर मेरे पास अब बनेंगे केसेस, J1 का मैंने हाफ वैल्यू उठाया, करस्पॉन्डिंगली J2 के दोनों वैल्यूज उठाए, तो J इज J1 प्लस J2 से J1 माइनस J2 तक 1 and 2, 3/2 minus half will give me 1, while 3/2 plus half will give me 2. Similarly J का वैल्यू आएगा 2 and 3. Now the second case is J1 is 3/2 and J2 की वैल्यूज उठाते हैं, 3/2 minus 3/2 will give me 0, 3/2 plus 3/2 will give me 3, तो 0 से 3 के बीच में I'll pick all the values. Similarly 5/2 minus 3/2 will give me 1 and 5/2 plus 3/2 will give me 8/2 which is 4, so I'll get 1, 2, 3 and 4, I'll get all 4 values, right? So इनको combine करते हैं, states देखते हैं, इसके अंदर फर्स्ट केसेस 1 और 2 दो ही बन रहे हैं, कपलिंग किसके बीच में है, हाफ एंड 3/2 के बीच में, दिस इज J2, दिस इज J1, 1, 2, I'll get 2 states. हाफ एंड 5/2 के केस में दिस इज 5/2, दिस इज half, I'll get 2 and 3 which is 2 and 3. This is my mistake, मैंने उल्टे बना दिए हैं, right? इस केस के अंदर I'll get 3/2, 3/2, I'll get 0, 1, 2 and 3, I'll get 4 states. Similarly मेरे पास केस आएगा ये वाला, I'll get 1, 2, 3 and 4, right? ये थी मेरी PD कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जब मेरा एक इलेक्ट्रॉन P में था, एक इलेक्ट्रॉन D में था। नाउ द सेकेंड वन इज SP कॉन्फ़िगरेशन। SP कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन विल बी इन S, करस्पॉन्डिंगली L1 0, S1 हाफ, L2 1, S2 हाफ फॉर P इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास L का रिजल्टेंट क्या आएगा, L1 प्लस L2, 0 प्लस 1, I'll get only 1 वैल्यू P टर्म के लिए। सिमिलरली S का डबलेट और सिंगलेट आएगा, राइट? तो I'll get 2 केसेस, S इक्वल्स टू 0 के लिए तो सिर्फ यही आ गया, S इक्वल्स टू 1 के लिए P इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, while 1 plus 1 is 2, so I get 3 states, 0, 1 and 2. Corresponding states will be 2p1 and triplet की 3 states. Now out of these 3 states, probability of transition of electrons is very low in case of triplet. So even in the triplet state, अगर मैं selection rules को follow करूँ जो मेरे को दिए जाते हैं, तो उसके accordingly I'll get to know कि मेरे जो 3p0 है and 3p2 states हैं, they are my metastable states, right? So this explains my JJ coupling with vector diagrams also. Now what is a metastable state? Metastable state is kind of a homework for you. आप खुद ढूंढ सकते हैं, obviously exam देने जा रहे हैं तो by now you must know what is a metastable state, right? So yeah, with this we finish this answer. This is very important, very important question, must come in the exam. So do it, practice it, this is very easy. अगर एक साथ करोगे तो बहुत easy लगेगा, yeah? So next time we'll come with the next question. Thank you so much.